चलो, check the answers. 27th one. Withdrawn cash of rupees 1000 and goods of 2000 for personal use. So one account is what? Drawings. To cash, to purchase. Purchase की जगह you can write goods withdrawn for personal use. Either purchase या फिर goods withdrawn for personal use. Drawings to cash to goods withdrawn for personal use या फिर purchase. आया? Drawings debit the receiver, cash goes out, goods go out या फिर purchase expense decrease. Paid for the following expenses by check. Check से पे किया तो which account? Bank account. House rent is what? Drawing. House rent is drawings. Rent is rent. Insurance is insurance. What is insurance? Premium. Insurance premium. Life insurance? Drawings. Son school fees? Drawings. And salary is salary. So you can combine the entry. It will be rent account debit 300, insurance debit 400, salary debit 700, drawings debit तीनों को ऐड करना है 1300 to bank 2700. Is that clear? क्लिक हुआ ये? 3 बिजनेस एक्सपेंस है, 3 पर्सनल एक्सपेंस है. जो पर्सनल एक्सपेंस है उसके लिए क्या लिखना है आपको? ड्रॉइंग से लिखना है. बात समझ में आई? Received commission from Vasant. Is Vasant's name important? No. Whenever you receive any income or pay any expense, party's name must be ignored. So it will be simply cash to commission. Cash account debit to commission account. Amount will be 100 rupees. Simple. Cash to commission 100 rupees. Got it? Paid commission to Vasant. Again, commission account debit to cash account 100 rupees. Vasant का नाम important नहीं है. Purchase 2 pencils of 5 each, erasers of 10 and 2 dozen, full skips of 2. I think the total value is 24, right? Yes. And that entry would be what? Stationery to cash. Don't write full skip account or pen account or eraser account. All this stuff comes under stationery. So stationery is your expense. Expense increases and cash decreases. 24. 1 minute. 2 pencils of 5 each, 10. Erasers of 10, 10 and 20. Erasers of total rupees 10. Got it? And 2 dozen full skip at 2 per dozen. So it is what? 24. Took out an insurance on goods. This was tricky. Took out an insurance on goods of 1 lakh rupees and paid premium on that 2%. मैंने आपको बताया था याद है इंश्योरेंस के बारे में. इंश्योरेंस में 2 ही चीजें होती है. एक आप प्रीमियम पे करते हो हर साल. दैट्स योर एक्सपेंस. यू पे प्रीमियम एवरी ईयर. दैट्स योर एक्सपेंस. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेनेवर देयर इज एनी लॉस यू विल गेट द क्लेम. व्हेनेवर देयर इज एनी लॉस यू विल गेट द क्लेम. दैट्स इट. नो मिडिल ट्रांजैक्शन इन इंश्योरेंस. जस्ट 2 थिंग्स. You pay premium every year. Pay off. That's your expense. And at the end, if there is any loss, you'll get the claim. वो claim हमने देखा, loss by fire, insurance claim, to purchase, claim, admitted and claim recovered. That's it. So यहाँ पर क्या हो रहा है? You are taking out a policy. तो policy निकलवा रहे हो तो 1 lakh क्या है? 1 lakh is the cover amount, claim amount. मतलब जब भी कुछ loss होगा, how much you will get? 1 lakh. That is the meaning. But right now you are paying 1 lakh. Or are you receiving 1 lakh? No. What is happening? You are simply paying the premium. You are simply paying the premium. So 1 lakh ka 2% comes to how much? 2000 rupees. Got it? Hello? That's it. Insurance premium to bank. Entry will be insurance premium to bank 2000. That's it. Insurance premium to bank 2000. सब वो 1 lakh का क्या करना है? 1 लाख तो आपने कवर लिया हुआ है. क्या आपने 1 लाख दिया, मिलना बाकी है? नहीं. वो तो जब लॉस होगा तब देखा जाए. हाँ, अगर लॉस नहीं हुआ तो खाली 2000 हर साल आप पे करते रहोगे. फिनिश. कुछ क्लेम का 1 रुपया आने वाला नहीं. ऐसा सीन. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? चलिए. सो जब भी आप इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते हो, that time there will be only entry for premium, no entry for that cover thing.
You got it? 1 लाख का कोई एंट्री आने वाला नहीं. एंट्री सिंपली इंश्योरेंस टू बैंक या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 2000. Withdrawn cash of ₹1000 for personal use, 2000 for office use from bank. पर्सनल यूज के लिए क्या है? ड्रॉइंग्स टू बैंक. ऑफिस यूज का क्या होता है? कैश टू बैंक. याद है ऑफिस मतलब बिजनेस में आया, तो कंबाइन करोगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आया. देन परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम अजय एट 10% TD and 2% CD. इज दिस ऑन कैश और क्रेडिट? क्रेडिट. पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं, तो खाली TD लेना है. 10,000 पे 10% इज 1,000, नेट इज 9. Entry will be purchase to Ajay 9. Purchase to Ajay 9. Debit all expense, credit the giver. Is this clear? Purchase goods of 10,000 from Ajay, 10% TD and 2% CD for cash. This is on cash. We take TD CD both. The 10,000 का 10% is 1,000. Net price is 9. 9,000 we take 2% CD also, which is 180. So final price is I think 8820. And your entry will be purchase account debit to cash account to discount received account. परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. परचेज में आएगा 9,000 टू कैश 8820 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 180. वी रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू अजय नेट. नेट दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न? अजय टू परचेज. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अजय टू परचेज रिटर्न हाउ मच? 500. And we return goods of 500 gross to Ajay. अभी gross है तो क्या करने का? TD माइनस करने का. TD माइनस करने का. किसका TD माइनस करेगा? अजय का. कितना था? 10%. तो 500 का 10% is 50. Net is 450. Entry is same. Ajay to purchase return, but the amount would be now 450 rupees instead of 500. Got the difference? We had done it earlier too. Gross दिया है मतलब क्या करना है? TD माइनस करना है. नेट दिया या कुछ नहीं दिया तो सेम वैल्यू लिखना है. सोल्ड गुड्स टू वसंत ऑफ 6,000 at 10% TD and 3.5% CD. So this is on credit. Only TD. 6,000 पे 10% is 600. Net is 5,400. Entry is Vasant to sales. Vasant to sales 5,400. Is that clear? Hello. Vasant to sales. Sold goods to Vasant for 8,000 at 10% TD, 3% CD for cash. This is on cash, Alicia. This is on cash. So which discount are we supposed to consider? Both TD as well as CD. So 8,000 का 10% is 800, net is 7,200. उसका 3%, 216. Final value 6,994. 6,984. 6,984. Entry will be cash debit, discount allowed debit to sales. You got that? Hello. Cash debit, discount allowed debit to sales. Cash 6,984. Discount allowed 216. To sales 7,200. Is this clear? Cash discount allowed to sales 6,984, 216 and 7,200. Vasant returned goods of 3,000. What's your entry? Sales returns to Vasant. Sales return debit all expense. Vasant credit the giver. Value is 3,000. Got that? Again, Vasant returned goods of 400 gross. This time it is gross. 10% TD of Vasant. Nearest transaction. Mila? So 360. Final value. Sales return to Vasant 360. Sales return to Vasant 360. आया ये? मिला सबको? Which one? 38. Sold goods of 7,000. अच्छा skip that. हाँ 38 skip ही होगा. Sorry. 38 वाला रह गया. Sold goods of 7,000 to Vasant at 5% CD. This was on cash or credit? तो क्रेडिट है तो खाली TD आता है. TD तो है नहीं तो nil. CD तो लेना नहीं है. तो simply Vasant to sales 7,000. Vasant to sales 7,000. Got it? Vasant to sales 7,000. Okay, बढ़े आगे. 3 साइड्स आपने छोड़े थे, है ना? लास्ट में हमने किया था आई थिंक टिल 19 और 18, 17 या 18 वाला देख लो. 18 से कंटिन्यू करते हैं. 3 साइड छोड़ा है वहां पे.
Rupees 500 previously written off as bad debts, now recovered from Rajesh. ये क्या है? Bad debts recovery है. Hello. This is what is called as bad debt recovery, right? So, if it is bad debt recovery, is party's name important? Were we expecting that Vijay will come someday and pay us? Vijay आएगा. Okay, नारियल वाले फूल के मंदिर में रखा हुआ है. ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं. विजय का अकाउंट तो हमने कब का बंद कर दिया है? बैड डेट बोल के बंद कर दिया है. क्रेडिट देके शट डाउन कर दिया. वी आर एंड एक्सपेक्टिंग. और दुनिया में कोई ऐसे देता भी नहीं है पैसे. जो गया हो गया, भूल जाओ. बहुत रेयरली अच्छे लोग होते हैं जो आके वापस पैसा दे के जाते हैं. उसमें से एक था हमारा विजय, तो आके पैसा दे के गया. तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश टू विजय या फिर कैश टू बैड डेट्स रिकवरी? Cash to bad debts recovery, because bad debts recovery is our new income. We aren't expecting कि वो आएगा कहीं से तो भाग के और पैसा देके जाएगा. It is simply cash to bad debt recovery या cash to bad debt recovered. Fine. Being bad debts recovered. Being bad debts recovered. Is this clear? All of you got this? Being bad debts recovered. Recovery या फिर recovered. पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अजय से आए, विजय से आए, राजेश से आए, राम से आए, संजय से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. बराबर है? ये लो. Next one. Purchase 10 shares of Tata Beverages of 200 each through Demat account and pay 2% brokerage. Now, what is Demat? You know, have you heard about this? Stocks खरीदना बेचना है तो आपको Demat account चाहिए. Okay? एक होता है आपका बैंक अकाउंट और एक होता है आपका Demat account. Demat account is for storing your shares. Okay? NSDL या CDSL दो डिपॉजिटरी है इंडिया में. उसको डिपॉजिटरी मतलब तिजोरी. जैसे आप पैसा लेके तिजोरी में रखते हो, वैसे शेयर्स लेके एक ऑनलाइन तिजोरी होती है. उस ऑनलाइन तिजोरी का नाम है NSDL या CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, एंड NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. दोनों गवर्नमेंट का बॉडीज है. तो आप जो भी शेयर्स खरीदते हो, आप उसको एक ऑनलाइन लॉकर में स्टोर करके रखते हो. वो ऑनलाइन लॉकर्स है NSDL और CDS. इज दिस क्लियर? तो उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए. NSDL CDSL में किसी में भी एक में डीमैट अकाउंट. आप जब ब्रोकर के साथ जीरोधा, अपस्टॉक्स का मतलब जो भी है ब्रोकर, मैंने बताया था ना आपको, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, किसी में भी आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे. बैंक अकाउंट तो बैंक में होता है, डीमैट अकाउंट ब्रोकर के साथ होता है. मतलब वो ब्रोकर किसी भी एक तिजोरी में आपका अकाउंट ओपन कर देगा. तो आप जो भी शेयर्स खरीदते हो वो ऑनलाइन सेफ रहेगा. ऐसा कोई चोरी वोरी कर नहीं सकता. और कल उठ के आपका ब्रोकर भी बर्बाद हो गया, ब्रोकर भी बंद हो गया, समझो शेर खान बंद हो गया, एंजल बंद हो गया, जीरोधा बंद हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके शेयर्स उस तिजोरी के अंदर सेफ है. आपने एक बार शेयर्स खरीद लिए, दे आर योर एसेट, दे आर इन दैट CDS एंड NSDL. आप कोई दूसरा ब्रोकर अपॉइंट करके उसके थ्रू भी वो शेयर्स बेच सकते हो. तो ऐसा टेंशन में नहीं आने का कि मैंने शेर खान के थ्रू लिया था, अभी शेर खान तो बंद हो रहा है तो मेरा शेयर्स गया. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है? आपने शेयर्स खरीद के रखा हुआ है, आपके शेयर्स सेफ है. कौन से अकाउंट में सेफ है उसके लिए आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया है? डीमैट. साल का कुछ 500 रुपीज दे चार्ज फॉर मेंटेनिंग योर शेयर्स. इज दिस क्लियर? सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये सारे डीमैट के थ्रू ही होते हैं. शेयर्स खरीदना बेचना है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए. आप 18 हो जाओगे तभी डीमैट ओपन कर सकते हो, अभी पॉसिबल नहीं है. तो वही है, शेयर्स का ट्रांजैक्शन सेम हमने देखा था. याद है? ब्रोकरेज. ब्रोकरेज क्या है? वन ऑफ द एक्सपेंस. खाली परचेज के वक्त पे करते हो कि सेल के वक्त पे करते हो, कि दोनों टाइम पे? दोनों टाइम पे करते हो. तो परचेज के वक्त व्हाट यू विल डू विद ब्रोकरेज? Add. And sale के वक्त what do you do with brokerage? Subtract. Right? It is one of the expense on asset. So how many shares of Tata Beverages have bought? 10 into भाव क्या चल रहा है? 200 रुपया. तो ये कितना होता है? 2000 रुपया होता है. प्लस की माइनस? प्लस ब्रोकरेज कितना लग गया? 2% which is 40. So total value of my shares is how much? 2040.
tell me shares are what kind of account? Assets. Shares बढ़ा कि घटा? बढ़ा. Sorry. So investment in shares account debit to what? बैंक की कैश. क्या आप शेयर्स कैश में खरीद सकते हो? इम्पॉसिबल. एसेट बढ़ा, बैंक घटा. ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही पॉसिबल है. सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. व्हाट वैल्यू शुड आई राइट? 2000 और 204? ये ब्रोकरेज कहीं अलग से रिकॉर्ड होने वाला नहीं. पार्ट ऑफ द एसेट. एसेट खरीदने पे हुआ है, इट इज पार्ट ऑफ द एसेट. बीइंग शेयर्स परचेज्ड एंड ब्रोकरेज पेड. Being shares purchased and brokerage paid. Understood? बताओ रिलायंस वाले शेयर्स खरीदे थे हमने, फिर बेचे भी थे, फिर प्रॉफिट लॉस भी किया था हमने. ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. एनएम में शायद बोलेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टाटा बेवरेजेस, तो पूरा लिखना है. ओके, खाली एनएम का लफड़ा. बाकी सब कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स चला लेते हैं. शुक्रिया वाली. देन नेक्स्ट वन, एनएम का नाइटमेयर. थोड़े दिनों बाद सपने में भी दिखेगी. देन परचेज 5 GOI bonds of ₹1,000 each and paid brokerage 10% per bond. What is GOI bond? Government of India bonds. What are bonds? You remember we discussed that time. What are bonds? A type of investment. फर्क क्या है? शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो what do you get? डिविडेंड. हर साल डिविडेंड मिलता है. इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी. आप बिजनेस के ओनर बन रहे हो वहां. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का मतलब आपने गवर्नमेंट को लोन दिया, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, रेलवे के लिए. आपने गवर्नमेंट को लोन दिया, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. ओके, तो अभी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, अभी तो बॉन्ड खरीद रहे हो. तो बॉन्ड आर व्हाट? एसेट. तो बॉन्ड बढ़ा और कैश घटा. बराबर है? कैश के थ्रू कि चेक के थ्रू? चेक के थ्रू. तो अकाउंट का नाम मैं क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर की जगह इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड. अच्छा, कितने खरीदे मैंने? 5. कितने का? 1000. तो टोटल होता है 5000. अच्छा, ब्रोकरेज है 10% पर बॉन्ड, तो टोटल पे 50%, राइट? एक पे 10% है ना, तो टोटल पे 50 हुआ. ऐसा होता है. मैथ डजंट वर्क. 10% ऑन टोटल लो कि 10% पर बॉन्ड लो, एक ही बात. तो 10% दैट इज 500, so you get 5005. Is this clear? पर बॉन्ड लो कि टोटल लो, 10% ही रहेगा. परसेंटेज है, रेशियो, मल्टीप्लाई नहीं करना. एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स टू बैंक 5005. Being Government of India bonds purchase and brokerage paid. या simply purchase भी चलेगा. अब कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदो, आप शेयर्स खरीदोगे तो क्या अकाउंट यूज करोगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. आप बॉन्ड खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड. आप एफडी में पैसा डालोगे, इन्वेस्टमेंट इन एफडी. आप डिबेंचर खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर. म्यूचुअल फंड खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड. जो खरीदो उसके साथ चिपका दो इन्वेस्टमेंट. वो सब एसेट है. इज दिस क्लियर? एसेट बढ़ा और पैसा गया. सिंपल सी चीज है. एसेट बढ़ा, पैसा गया, खाली चेक के थ्रू दोगे आप तो बैंक आएगा. उतना ध्यान रखना. ठीक है? डोंट राइट कैश. दे वोंट मेंशन देयर चेक और एनीथिंग. यू शुड अंडरस्टैंड. देन सोल्ड 20 shares of Infosys for 200 each through demat account and paid brokerage 2%. 20 शेयर बेचे, लेकिन किसके बेचे? टाटा बेवरेजेस के या बॉन्ड थे कि इन्फोसिस के शेयर्स? इन्फोसिस, कोई दूसरी कंपनी, उसके शेयर्स. कितने? 20 at the rate of 200. So that becomes 4000. एंड ब्रोकरेज प्लस करो कि माइनस? याद है, बताया था. परचेज के वक्त एड ब्रोकरेज, सेल के वक्त माइनस ब्रोकरेज. यू विल गेट दैट मच लेस, है ना? ब्रोकर काट लेगा. 3% है. So I think 120. So final value is 3880. Okay. Now सोचो, शेयर्स बाय किया है कि सेल किया है?
सेल किया तो पैसा आया, बैंक आया, शेयर्स गया। बट हम लोग प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड करते थे, याद है, शेयर्स पे, क्योंकि एसेट था। बट डू वी नो कि इन्फोसिस का शेयर्स कितने में खरीदा है? ऊपर दिख रहा है आपको कहीं पे? उधर तो हमें पता था, याद है, रिलायंस वाला 2040 में खरीदा था। 2040 नहीं था, सॉरी, कुछ और, वो दूसरा था। उससे पहले रिलायंस वाला जो भी 500 में खरीदा था, ब्रोकरेज के बाद 5100 में खरीदा था। ओके, वो बाद में कुछ 7000 आसपास में बेचा, 7500 व्हाटएवर। सो कॉस्ट पता थी, वी न्यू कि कितने में खरीदा है। यहाँ पे डू वी नो कि इन्फोसिस का शेयर कितने में खरीदा है? नो, पता ही नहीं है तो छोड़ देने का, पता ही नहीं है तो छोड़ देने का, छोड़ दे। पता ही नहीं है तो लीव दैट कॉस्ट, मतलब अज्यूम यू आर सेलिंग द शेयर्स एट नो प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। ओके, तो सिंपल बेसिक एंट्री ऑफ सेल ऑफ शेयर्स क्या होगा? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, दोनों में सेम वैल्यू 3880। इसका मीनिंग क्या हुआ? नो प्रॉफिट, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं जितने का था उतने में बेच दिया, जितने का था उतने में बेच दिया। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड एट नो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सिंपली इन्वेस्टमेंट सोल्ड या शेयर सोल्ड। तो अगर आपको पता है कि ये शेयर्स कितने के हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करोगे, हेलो, बिकॉज इट्स एन एसेट। बट आपको पता ही नहीं है शेयर्स कितने के, तो कर सकते हो क्या प्रॉफिट लॉस? कर ही नहीं सकते, करने जाओगे फिर भी अटक जाएगा। तो फिर जो वैल्यू है वही लिखो, फिनिश करो उसको। सोल्ड 20 securities in Wipro for 50 each, paid brokerage 1%. Securities and shares are synonymous. Securities is a common word which is used for shares and bonds, debentures both. तो सिक्योरिटी दिया वाला वो शेयर्स ही है, सेम। कितना बेचा? 50 shares, नहीं, 20 shares of Wipro. 20 shares of Wipro at what price? 50 रुपए में बेचा था। ब्रोकरेज है प्लस की माइनस, बेचते वक्त माइनस, खरीदते वक्त प्लस, तो 10 रुपीज, नेट इज 990, करेक्ट? ब्रोकरेज कहीं अलग से दिखने वाला है? बोलो, विल यू सी ब्रोकरेज एनीवेयर सेपरेटली? नहीं है कि है? नो ब्रोकरेज नोवेयर। ओके, खरीदते वक्त ऐड, बेचते वक्त सब्ट्रैक्ट। सोच के बताओ विप्रो के शेयर्स कितने में बाय किया था? पता है? चेक करो ऊपर, कहीं दिख रहा है ही नहीं। तो कैन यू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस? इम्पॉसिबल। सो व्हाट्स योर रेट? सेम, बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू investment in shares, how much? 990. 990 being shares sold. Being shares sold. You can write securities, shares, securities, interchangeable. It's fine. Narration, it's fine. Got it? Got it? Exchanged old motor of 10,000 for cash 3 and furniture 4. What did you get? तो कैश आया तो बढ़ा, डेबिट, फर्नीचर आया बढ़ा तो डेबिट, लॉस और मोटर। हाँ, मोटर का कितने का गया? 10। कैश कितना आया? 7। कैश 3 और फर्नीचर 4। कैश 3, फर्नीचर 4, टोटल मोटर का गया 10 का, तो गैप है ना, लॉस रिकॉर्ड करूं? क्यों? एसेट, गुड्स पे रिकॉर्ड नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर का, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर का डेबिट 3000 टू मोटर का, बीइंग मोटर का सोल्ड एट लॉस, बीइंग मोटर का सोल्ड एट लॉस। कैश एसेट बढ़ा, फर्नीचर एसेट बढ़ा,
लॉस एक्सपेंस बढ़ा टू मोटर कार. Understood? Is this clear? Alright. अभी थोड़ा सा ट्रिकी है. Exchanged old furniture of 8,000 for a new furniture of 9,000. पुराना फर्नीचर दिया 8 का और नया फर्नीचर आया 9 का. तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? 1000 का. सोचो ऐसे दिखता है ना एंट्री. एक फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट हाउ मच 9. दूसरा गया तो 2 फर्नीचर 8 एंड प्रॉफिट तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? एसेट पे होता है, गुड्स पे नहीं होता है. तो प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज 1000. कैन आई राइट दिस entry? Why? What's wrong? Exactly. Same account cannot appear on debit entry. So what am I saying? Old furniture, new furniture. Don't write old furniture. There is only one account, furniture. कितना भी हो. Sir, you do minus. तो उड़ा दो. फर्नीचर उड़ा दो. तो नेट फर्नीचर कितना है? तो your simple entry is furniture account debit to profit on sale of furniture 1000. That's it. Simply 1000 का ही एंट्री है. 8 को क्या करो? सिंपली उड़ा दो. Being furniture exchanged at profit. Furniture exchanged at profit. समझा? क्या गलत हो रहा था अगर मैं फर्नीचर लिखता तो? Same account cannot appear on debit and you can't have multiple account for same asset. You can't have old furniture, very old furniture, new furniture, latest furniture. Can't have that. Asset one account. That's it. One furniture पूरा lifetime तक furniture. Machine full lifetime तक machine. Computer lifetime तक computer. Okay? खरीदा तो भी वही, बेचा वही, लॉस हुआ तो भी वही, प्रॉफिट हुआ तो भी. Same account. स्टार मार्क करना है ये एंट्री. ओके 25 देखते हैं. देखो started business with cash 10,000, furniture 5, machinery 5, horse 5. Half of the cash was borrowed from Ajay. अभी दो चीज हो रहे हैं यहाँ. क्या दो चीज? एक तो borrowed मतलब क्या? लोन. और एक बाकी का मसाला कौन ला रहा है? ओनर. मुझे बताओ पहले लोन कितने का है? हाफ ऑफ द कैश वॉज बोरोड. हाफ ऑफ द कैश कैश टोटल 10 कैश आया है. उसमें आधा कैश बोरो किया है सर. तो 5,000 का कैश बोरो किया है. हेलो. तो लोन का सिर्फ एंट्री पास कर दो पहले. लोन का क्या है? कैश टू अजय लोन कितना? 5,000. ये अलग रखो. ये हो गया. अभी बाकी सब चीज कौन लाया? ओनर. तो ओनर कितना कैश लाया? 5. क्योंकि 10 में से 5 लोन है तो 5 ओनर लाया. तो कैश ओनर लाया 5. और क्या लाया? फर्नीचर. ये भी ओनर लाया. डेबिट व्हाट कम्स इन 5. और मशीन ये भी ओनर लाया. कितना? 5. और थोड़ा मतलब लाइफ स्टॉक ये 5. टू कैपिटल कितना? 20. इज दिस क्लियर? सिंपल है. पहले क्या करने का? लोन. लोन कितना हुआ? 5. कैसे पता चला? हाफ ऑफ कैश. 10 का आधा 5. तो कैश टू लोन किया 5. वो हो गया. बस बाकी सब ये कैश 10 में से 5 ओनर लाया. 5 का फर्नीचर मशीन ये सब तो पूरा ही ओनर ला रहा है. टू कैपिटल. नाउ सिंस बोथ द एंट्रीज आर हैपनिंग ऑन द सेम डे व्हाट आर यू सपोज्ड टू क्लब इट. तो फुल क्लब करोगे तो क्या मिलेगा? कैश कैश ऐड हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट कितना?
10,000, 5 plus 5. Then what? Furniture debit, how much? 5. What next? Machine debit, how much? 5. Then what? Livestock debit, how much? 5. 2. What do you write? Ajay's loan. To Ajay's loan, how much? 5. And to capital, how much? 20. 25. बोलो. Capital is 20. यही है ना, सिर्फ यही figures छाप रहा हूँ. Same figures I am copying. मिला खाली just add debit को debit, credit को credit. I am just combining the entry. So being cash, furniture, machine, livestock introduced as capital and loan taken. ये पहले भी आया था एक बार, याद होगा तो, और मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था आपको. Anyone remembers? ये दो एंट्री करे बिना यहां से ही आप कर सकते हो शॉर्टकट से. How to do? Need to add all and just write the value of loan. याद आया? क्वेश्चन में देखो कितने का आया कैश. क्वेश्चन देखो 10, फर्नीचर 5, मशीन 5, लाइवस्टॉक 5. मिला? जैसा वैसा छाप दो, सब ऐसे छाप दो. लोन का अमाउंट कितना है? लोन 5. तो बाकी क्या होगा? कैपिटल ही होगा. तो कैसे करने का? डेबिट माइनस एड अप ऑल दी एसेट्स, सबट्रैक्ट द लोन, यू गेट कैपिटल. ऑटोमेटिकली कैपिटल मिल जाएगा. समझा? हेलो, दो एंट्री करने की जरूरत नहीं. सारा एसेट छापो, लोन लिखो, डेबिट्स में से लोन को माइनस करो, बाकी कैपिटल, बाकी ओनर लाया. इज दिस क्लियर? और गॉट दिस स्टैंडर्ड एंट्री बहुत बार आता है. Try the next one. Ram started business with cash 12, goods 6, building 4, of which 40% of the cash is borrowed from Rahim. Come on, try. Similar. 40% of the cash is borrowed from Rahim. %40 of the cash is borrowed from Rahim. Goods. You can write stock या purchase. Either stock or purchase. Write either stock or purchase account. नहीं जम रहा है तो दो एंट्री करके करो. डायरेक्टली भी कर सकते हो. अभी शॉर्टकट बताया वैसे. हाँ हाँ हाँ. हाउ इट विल बी 25? नहीं, बिजनेस में टोटल कैश 10 आया, उसमें से बाहर वाला 5 और ओनर का 5, ऐसा. तो एसेट में कैश इज 10, बट आउट ऑफ दैट 5 इज कैपिटल, 5 इज लोन. टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, राइट. जेठालाल गढ़ा ने 70 लाख लिया था. 50 लाख was capital, 20 lakh was loan. So cash would be 70 lakhs, but
50 कैपिटल 20 लोन ना, 20 बाहर वाले को देना है, 50 घर वाले को देना है. लोन अलग है, कैपिटल अलग है. बोथ आर लायबिलिटी. वन इज एक्सटर्नल, वन इज इंटरनल. कांट मिक्स. ट्राई किया. देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, पहले छाप दो. जो भी एसेट आ रहा है बिजनेस में सब कॉपी एज इट इज. टोटल ही छापो, क्वेश्चन से छापो. कैश डेबिट हाउ मच? 12,000. हेलो 12,000. स्टॉक या फिर परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 7,000. हेलो सॉरी 6,000. एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हाउ मच? 4,000. पहले क्या ढूंढ लेने का? लोन. तो टू रहीम्स लोन कितना आया पता है? लोन में 40% ऑफ कैश. 12,000 का 40% इज 4,800. अभी जो बचा वो क्या है? कैपिटल. जो बचा वो कैपिटल. तो 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22. टोटल 22. इधर भी 22 होना चाहिए. डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज. 22 माइनस 4,800. समझा? इसका ब्रेकअप भी आप पता कर सकते हो. 17,200 कैसे? ये 4 आ गया, पूरा ओनर लाया. ये 6 भी पूरा ओनर लाया. कैश में ओनर कितना लाया? 7,200. 7,200 प्लस 6,000 प्लस 4,000 इज 17,200. जो ओनर लाया उसको क्या बोलता है? कैपिटल. जो बाहर से उठाया उसको हमने खाली दोनों एंट्री मर्ज. अलग अलग तो बहुत बार किया, मर्ज कर. अभी 27 से 42 तो किया है ना. अभी ले लो 43rd. 43rd देखो फटाफट. प्लीज बी क्वाइट. 43rd देखो. हाँ क्या डाउट है? प्लीज पे अटेंशन. 43 कमेटी वाइज स्टार्ट हो गया. क्या दिया? ओरिएंटेशन की कुछ चालू किया. ठीक है. मैं डेफिनेशन चालू है. डेफिनेशन डेफिनेशन में ठीक. और expense, deferred revenue. Expense is life is more than it. अच्छा guys, NM में क्या चालू है? एक मिनट. 75 उसने बोला 95. अपना थोड़ा डेफिनेशंस बाकी है. आई टेक दैट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. बट इतना तो छोटा डिवाइड किया है. कंसेप्ट चालू किया एनएम में. सॉरी. हाँ फॉर्मेट तो यू शुड बी ना. दैट वाज सिंपल. Nothing will come from it. NM won't ask anything to us. Accounting equation will be doing in class. Accounting equation अपना बाकी है. Some definitions from standard textbook बाकी है, वो भी करेंगे. And हाँ वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का पार्ट बाकी. और कुछ अलग करवाए तो बताना मेरे को. ठीक है. ये सब बाकी है. एनालिसिस तो सिंपल है ना तुम्हारा. मतलब अपने में से 2 कॉलम उड़ा दिया उसने. खाली ट्रांजैक्शन, अकाउंट इन्वॉल्व एंड अकाउंट डेबिटेड एंड अकाउंट. मेरा करोगे तो इश्यू नहीं. और ज्यादा डिटेल है ना, उतना क्यों टाइम वेस्ट करना एग्जाम. 2 कॉलम उड़ा दो. कुछ एक्स्ट्रा है तो बोलना. कम करवाए. Why are you doing more? तो क्या है? ये तो है परचेज गुड्स फ्रॉम पर्सनल.
of which goods worth 4,000 are withdrawn for personal use and balance for stock. हाँ, तो पर्सनल फंड से गुड्स खरीदा तो मतलब बिजनेस में गुड्स लाया और पर्सनल पैसा दिया, स्टॉक टू कैपिटल, और उसी में से विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स टू स्टॉक, वो कट हो गया, जो पर्सनल है वो कट हो गया, तो बिजनेस में कितना आया, टोटल अमाउंट क्या है पर्सनल फंड से लिया हुआ, सर बट उन्होंने क्या किया? 44,000. उसमें से विड्रॉ कितना किया, तो बचा 40, वो बिजनेस में आया, कहां से आया, स्टॉक आया ना, पैसा किसने दिया, ओनर ने, तो कैपिटल, स्टॉक टू कैपिटल 40, पर उन्होंने drawings भी purchase में डाल दी सर। स्टॉक टू कैपिटल या परचेज टू कैपिटल, दैट इज 40। बट उन्होंने जो गुड्स लेकर खुद घर पे लेके गए ना, उनको भी परचेज में डाल दिया। नहीं, उन्होंने ऐसा किया, रॉन्ग, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है. घर पे क्या वो परचेज है ही नहीं, वो ड्रॉइंग्स है, अगर वो भी बिजनेस से निकाला तो, पर्सनल फंड से घर पे लेके गया ना तो कुछ एंट्री नहीं आएगा, बिजनेस में कितने का आया, नेट 40, दैट इज स्टॉक या परचेज टू कैपिटल। बताऊंगा, वो सब करवाऊंगा, खाली लिख के रख दो, जो भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस है ना, विल टेक दैट। अपना कंसेप्ट खाली 3 हुआ है, 18 कंसेप्ट है, सब सीधा कंसेप्ट ही लिया गया, Approval concept, realization, विल डू दैट, verifiable concept. सॉरी, दोस डेफिनेशंस आर लेफ्ट आउट, वो सब बहुत आगे का पार्ट है, बेसिक्स करेगा उसके बाद आता है वो सीधा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके सीधा स्किप किया है 10th स्टैंडर्ड पे, ऐसा हो। चलो, वही कॉलेज का यही प्रॉब्लम है, 2-3 लेक्चर में है ना पूरा जूप करके रॉकेट घुमा डालेगा, बोलेगा दिस इज देयर इन पोर्शन, खत्म। मैथ्स आल्सो सेम थिंग, 2 sums they do finish, this is देयर इन पोर्शन। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर उड़ा डालेगा, पता भी, 1 lecture you even absent, what happened, what happened? आधा दुनिया निकल जाएगा फिर, वेरी फास्ट करके। चलो, यूनिट टेस्ट का डेट दिया क्या, वो भी दे देता है, वो तो मिट्टी भाई ने दिया है सबको, एनएम ऑल्सो, मिट्टी भाई का तो पूरा टाइम टेबल आ गया, एनएम देखते हैं, कंफर्म डेट्स आएगा तो बताना। सी नाउ 43rd, purchase goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD and gave cash 8820। मुझे बताओ, is this on cash or credit? नहीं दिया, हाफ कैश, 1/3, फुल कैश। बोर्ड पे देखो, कैश पे है तो कौन सा डिस्काउंट आता है, दोनों आता है, टीडी एज वेल एज सीडी। तो पहले सब्ट्रैक्ट टीडी विच इज 10%, सो 1000, नेट इज व्हाट, 9000। अभी 10,000 है, उसका 10% होता है 9, नेट करके। अभी पेड कितना है, 8820, पेड कैश 8820, मतलब इतना पैसा दिया, मतलब इज दैट 8820 बिफोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट? तो सीडी भी माइनस करना है, कितना है सीडी, 2% ऑफ व्हाट, 9,000 विच इज, तो आया ना 8820, यही तो दिया है उधर, कंफ्यूज मत हो जाना है, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट 8820, बट ये भी तो चाहिए ना, सीडी बुक में रिकॉर्ड होता है, बिना सीडी के कैसे करो सर? हम लोग रावण में सीडी का कैलकुलेशन नहीं लिखा है, रफ में पीछे। अभी ये वाला क्लियर है, खाली आपको है ना एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया था पेड का अलग से, समझा? तो आपने वेरीफाई करके चेक कर लिया, हाँ 9,000 माइनस 180 इज 8820, बराबर मैच हो रहा है। बोलो एंट्री क्या होगा,
परचेज अकाउंट डेबिट To cash account credit. टू कैश To discount receipt. टू डिस्काउंट रिसीव, बराबर है. परचेज में 9, कैश में 8820 and discount received is 180. Understood this? Being goods purchased for cash at so and so TD and CD. Clear है? सिंपल था, नॉर्मली था, खाली पेड अमाउंट दे दिया था, एक्स्ट्रा डेटा दिया था, तो आपने वेरीफाई करके चेक किया कि 8820 आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है, परफेक्ट. सीधा नेक्स्ट वन. सोल्ड गुड्स at 10% TD and 4% CD, received a check of 4320. Received a check of 4320. Okay? So is that check amount before CD or after CD? After CD. Obviously paid and received amounts are after discount. अभी यहाँ पे do you have any gross price? जैसे इधर दिया था, इधर तो है नहीं, तो खाली फाइनल वैल्यू दी है which is 4320. तो we'll have to find out the before CD amount. Before DD नहीं ढूंढा ग्रॉस तो चलेगा, ग्रॉस के रिकॉर्ड नहीं होता, बट बिफोर CD तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि CD बुक्स में रिकॉर्ड होता है. कैसे ढूंढो? एक 100 वाला मेथड था, Cross multiply. X वाला में. X था, 100 वाला था, और एक था ट्रायल एंड एरर. याद है आपको? What is the percentage of CD? 4%. 4% है और फाइनल अमाउंट 4320 है. नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड 4500. अप्लाई करके देखो, 4500 पे 4% कितना होता है? 180. हो रहा है मैच? इधर ही काम हो गया. ओके, लिखने का तो 180 आ गया ना डिस्काउंट, और ये 4320 आ गया. व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स. कैश कितना है? चेक है क्या? चेक है तो बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट 4320, डिस्काउंट अलाउड कितना? 180 एंड सेल्स 4500. कैसे मिला 4500? नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड. तो 4320 का पहला 4400 डाल के देखो, या 4500. 4400 बहुत क्लोज हो गया. 4500, तो 4500 पे आ रहा है बराबर 4%. मैच हो रहा है. अभी जो फुल प्रूफ तरीका है, दिस वाज ट्रायल एंड एरर. फुल प्रूफ तरीका क्या है? इक्वेशन बनाओ. व्हाट इज द इक्वेशन? अमाउंट बिफोर CD minus CD is equal to amount after CD. Remember, amount before CD minus CD is amount after CD. Correct? What is the percentage of CD? 4%. Before वाला क्या लेना? 100. 100 का 4% is 4. 100 minus 4 is 96. So what do we know out of the two in the question? What is this? Before CD or after CD? 4320 क्या? After discount था, तो इसके नीचे लिखो 4320 and then cross multiply. तो if before वाला 100 है तो after वाला 96, after वाला 4320 तो before वाला कितना? Cross multiply. तो 4320 into 100 upon 96 which is 4005. थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है ये, बट आंसर आएगा पक्का, श्योर शॉट. व्हाट इज द डिस्काउंट? वाज 5%. 100 minus 5 95. What if it was 6%? 100 minus 6 94 and then cross multiply. Simple. X से भी कर सकते, X मेथड भी चलेगा. X मेथड में क्या होगा? X minus 4x upon 100 is equal to 14320. Then solve it for X. Get the same answer. X वाला थोड़ा लंबा है, ये उससे छोटा है. सबसे छोटा ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर जम गया तो बेस्ट, उसके जैसा कुछ. ओके,
और ट्रायल एरर में 90-95% आपको आंसर्स आ जाएंगे. बहुत रेयर सिचुएशन है कि नहीं है. बढ़े आगे. नेक्स्ट वन 45. Ajay settled his account of 5,000 by paying cash to check 1, furniture 1 in full settlement. What do you understand by in full settlement? Discount या bad debt? कितना पैसा लेना था बंदे से? क्या क्या दिया? 4,000 ही दिया सब मिला के. तो 1,000 कम दिया. Is that bad debt? No. कौन सा डिस्काउंट है? टीडी या सीडी? सीडी है ना? क्यों? सीडी तो रिकॉर्ड नहीं होता. सीडी हो सकता है. अच्छा, सीडी तो इमीडिएट पेमेंट पे ही होता है. बाद में भी होता है क्या? होता है. विद इन द क्रेडिट पीरियड इफ ही सेटल्स देन सीडी आ सकता है. 100% आ सकता है. तो ये वो वाला डिस्काउंट है. तो क्या करोगे? एंट्री में आपको पैसा आ रहा है. हेलो. तो कैश आया कि गया? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2,000. चेक है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 1,000. देन व्हाट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 1,000. और क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड या रिसीव? अलाउड. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 टू कौन है? अजय. अजय सेटल हुआ बाय 5,000 बीइंग कैश कॉमा बैंक दैट इज चेक. कैश चेक furniture received from Ajay in full settlement. In full settlement. What's your hint that it is discount? In full settlement. In full settlement is your hint. In full settlement is your hint. Understood? In full settlement. No, insolvency or bankruptcy. They'll give you insolvency or bankruptcy, then it is bad. Okay? In full settlement दिया तो discount. कुछ नहीं दिया तो भी discount दिया. Next one, we settled Rajiv's account to the extent of 10,000 at 10% CD by issuing him a check of 50% and the cash for balance 50%. We are settling Rajiv's account. Why are we getting CD? But why? On the spot तो किया नहीं है क्योंकि क्रेडिटर है वो हमारा. क्रेडिट पीरियड के अंदर दिया है. ये बाद वाला सीडी है. समझ में आया? हेलो. इमीडिएट कैश परचेज कैश सेल नहीं हो रहा है. राजीव कौन होगा? वाई आर वी पेइंग राजीव? क्रेडिटर होगा. ऐसे तो फुकट में पैसा देंगे नहीं. तो क्रेडिटर होगा. तो वी आर सेटलिंग आवर क्रेडिटर, राइट? क्रेडिटर इज वर्थ 10,000. उसमें पहले क्या कर लो? सीडी कितना है? 10%. सीडी ऑफ 10%. ओके, दैट इज व्हाट? 1,000. नेट इज 9. क्या 9 पूरा कैश है? पूरा चेक है? आधा आधा. 50% कैश, 50% चेक. तो कितना होता है ये? 4,500 एंड 40. दिस इज नॉट पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Is this partly cash, partly credit? No. There was a creditor Rajiv. We are settling. We are getting some CD. Why are we getting? क्योंकि टाइम से पहले पैसा. एंट्री क्या बनेगी? Rajiv account debit to what? Cash to bank to discount allowed या receipt? Receipt. Rajiv कितना डेबिट? 10,000. कैश दिया 4,500. चेक दिया 4,500 एंड डिस्काउंट 1,000. Being Rajiv's account settled at discount. या कैश चेक पेड एंड in full settlement. Cash check paid to Rajiv in full settlement. Cash, check
paid to Rajiv in full settlement. In full settlement. समझा कि नहीं? बोल. करें आगे. फटाफट. चले नेक्स्ट. क्या? No. See, guys, in this problems, 50% कैश था, बाकी 50% चेक था. दोनों तो इमीडिएट पेमेंट है. सीडी तो दोनों पे आता है. समझा? दोनों पे ही सीडी लेना है. अच्छा, नेक्स्ट देख लो फटाफट. Gave rupees 200 to Ram on behalf of Shyam. Shyam to cash. कि राम टू कैश. जिसके बिहाफ पे दिया वही बंदा इंपॉर्टेंट है, राइट? लिखो श्याम टू कैश. श्याम टू कैश. नेक्स्ट क्या होगा? गिव 300 टू रोहन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन. मोहन टू कैश. मोहन टू कैश. श्याम टू कैश. मोहन टू कैश. पहला वाला श्याम टू कैश, फिर मोहन टू कैश. बिहाफ दिया है तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं. 47th is श्याम टू कैश. 48th is मोहन टू कैश. मिला? आया? Then 49th received 200 from Rohit on behalf of Mohit. Cash to Mohit. Cash to Mohit. Cash to Mohit. Perfect. Cash to Mohit. And received 600 from Rajiv on behalf of Sanjeev. Cash to Sanjeev. Cash to Sanjeev. Cash to Sanjeev. जब भी paid received amount है, party's name is ignored. Paid received amount है, party's name is ignored. मतलब on behalf वाला important. On behalf. On behalf वाले कोई पकड़ने का. Physically किससे पैसा आया वो important नहीं. Okay. Done. Take sum number 23. 23rd sum. अभी 23rd is a mixed variety of a actual business. एक एक्चुअल बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, पूरा वैरायटी साथ में. ओके. अभी तक जो करते आ रहे थे वो प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन थे. सब सिमिलर वाले आ रहे थे. अभी एक्चुअल बिजनेस जो सम आएगा आपको एग्जाम में वो टाइप का ट्रांजैक्शन है. 23rd सम. स्टार मार्क करना. इन द जर्नल ऑफ मिस्टर खान. इन द जर्नल ऑफ मिस्टर खान. Proper journal it is. Very important sum, 23rd sum. स्टार मार्क करके रखो.
देखो these are for the month of January. Year नहीं दिया है. There is no year given, so you can write simply 1st Jan. Okay. Now we can skip narrations. You know narrations? आता है लिखने को सबको? Narration आता है ना? So we can skip. We can save time over there. Only the entry. Okay. Short में किधर जरूरत पड़ा important entry रहेगा तो I tell you to write narration. Okay. किसी को frame करने में problem है narration? तो लिखो. Copy करना है कुछ. Skip narration. Mr. Khan sold personal property for rupees 1 lakh and invested 75,000 in running business. Mr. Khan, ये खान के बिजनेस में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सब. This is actual business now. Okay. Sold personal property for 1 lakh and invested 75,000 in running business. सोचो, personal property बेचने का कोई एंट्री, क्योंकि बिजनेस में कोई पर्सनल एंट्री होता नहीं है, तो एंट्री किसका है? कैश टू कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 75,000. Cash account debit to capital account 75,000. Cash introduced as capital. Cash introduced as capital. Skip the narrations. If you want, you can write. अगर नहीं जम रहा है तो. Second one, he received a birthday gift of 5,000 from his mother-in-law, सासुमा जी से गिफ्ट मिला, and deposited the same in the business bank account. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एंट्री क्या बनेगी सोचो? बैंक टू कैपिटल. बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल? बैंक. Why not cash? देखो उसको पर्सनल जो गिफ्ट मिला उसका तो कोई एंट्री नहीं है. बिजनेस में कैश में लाया कि बैंक में डाला सीधा? तो बिजनेस का बैंक एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा. तो व्हाट इज द एंट्री? कम ऑन. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. समझ आया? बैंक एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा. बैंक एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा. समझा? यस सर. Then he borrowed rupees 10,000 from his friend Mr. Apte at the rate of 12% interest per annum. Borrowed मतलब लोन लिया. अच्छा, what is that 12% interest? अभी लोन लिया ताबड़तोड़ इंटरेस्ट हो गया. आगे एंट्री है. मंथ एंड में या ईयर एंड में 6 मंथ्स में तभी इंटरेस्ट पे होता है ना. अभी तो लोन लिया सिर्फ, तो एंट्री क्या हो? कैश टू आफ्टेज लोन. कैश टू आफ्टेज लोन. अभी एनएमईडी बाय स्पेशली क्या बोलेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा टू 12% आफ्टेज लोन. क्या लिखने का? 12% आफ्टेज लोन. ऐसा लिखने का. प्रीफिक्स में परसेंटेज चिपका देने का. 10% है तो 10% आफ्टेज लोन, 12% है तो 12% आफ्टेज लोन. मतलब ये लोन आपने 12% इंटरेस्ट पे लिया. समझा? सभी लोग लिखो. सबको एनएम जो चलाते सब चला. एनएम इज लाइक बेंचमार्क. जो एनएम करता है बाकी सब कॉलेज में बाय डिफॉल्ट चल जाता है. एक्स्ट्रा ही करवा, कम नहीं करवा. सोमैया कम करो, एनएम एक्स्ट्रा करो. ओके, सोमैया 0 पॉइंट है, एनएम इज 1 पॉइंट. डेट शार्ट. So this is cash to 12% after loan. How much? 10,000. अच्छा, अभी कुछ इंटरेस्ट करना है क्या कैलकुलेट? अभी तो लोन लिया है. 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद विल पे इंटरेस्ट. तभी हम लोग करेंगे वो इंटरेस्ट का पीएनआर वाला फॉर्म. इसी में लास्ट ट्रांजैक्शन इज ऑफ इंटरेस्ट. आई थिंक नेक्स्ट वन हो गया. ये 4th जनवरी
Purchase goods worth 5,000 less 5% TD from Naveen. Is it on cash or credit? पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया. Which discount should come? Only TD. तो पहले 5,000 पे less TD 5% which is 250, right? So 4750 entry. Purchase account debit to what? Naveen account 4750. Simple. नवीन भैया को क्रेडिट क्यों दिया? पैसा देना बाकी है. कहाँ किया मैंने? खाली माइनस करके छोड़ दिया. ये माइनस तो करूंगा ना, एंट्री में रिकॉर्ड नहीं, एंट्री में खाली सीडी हो. क्लियर है? परचेज टू नवीन. समझ रहा है सब ट्रांजैक्शन? रूल फिट हो रहा है? रट्टा अट्टा मार के मत भागो. कैश एसेट बढ़ा, लोन लायबिलिटी बढ़ा, परचेज एक्सपेंस बढ़ा, नवीन लायबिलिटी बढ़ा. ट्रेडिशनल मॉडर्न. रूल तो रूल बेसिक है भैया. डोंट लिव योर पिलर्स. पिलर को छोड़ के भागोगे तो बिल्डिंग ठप गिर जाएगी. नेक्स्ट वन. परचेज machinery worth 48,000 from HMT and issued a check for the same. Spent 2,000 on installation of above machine. मशीनरी तो 50 का है. टू बैंक टू कैश कि पूरा टू बैंक? क्योंकि मशीन कैसे खरीदा है? चेक में 48 का, और इंस्टॉलेशन आर पेड बाय कैश. तो मशीन टोटल आया कितने का? 50. एसेट बढ़ा तो डेबिट 50. हेलो. टू बैंक कितना? 48,000 है ना, एंड टू कैश 2,000. मशीन टू बैंक टू कैश. इट इज पार्टली बाय चेक, पार्टली बाय कैश. गॉट इट? हेलो. क्रेडिट पे है क्या इसमें कुछ? क्रेडिट पे लिया क्या कुछ? सर एचएमटी का नाम दिया ना, लेकिन चेक फॉर चेक आ गया ना. एचएमटी का नाम है लेकिन फॉर चेक नहीं दिया, तो सेकंड कंडीशन वायलेटेड. इट्स नॉट ऑन क्रेडिट, इट्स फॉर चेक बैंक कैश ट्रांजैक्शन. खाली फर्क क्या है? इतना चेक है, इतना कैश है. इंस्टॉलेशन और कैश. समझा? लो दिस आ रहा हूं यार. सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000. यहां तक क्लियर है? नहीं समझ आया तो पूछ लेना फटाफट. सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 at 10% TD and 2% CD terms if the payment is received by the end of Jan to Mr. Bose. इसका अर्थ क्या है? क्रेडिट सीडी लगेगा. सर नहीं दिया तो ऐसा कुछ पर सीडी लगेगा. नहीं लगा. वो एंड ऑफ जैन का मतलब क्या? महीना खत्म होने के बाद. उससे पहले क्या? मतलब पेमेंट आ जाएगा. तो क्रेडिट पीरियड के अंदर है ना, जैन. एक मिनट पढ़ो. You're not getting it. सुनो वापस. सोल्ड गुड्स of 10,000 at 10% TD and 2% CD terms if the payment is received by the end of Jan to Mr. Bose. हाँ, मतलब अगर बोस जैन के एंड तक पैसा दे देगा ना तो सीडी अलाउ करोगे. अगर जैन के बाद देगा तो सीडी अलाउ नहीं करो. तो फिलहाल यू आर सेलिंग ऑन कैश और क्रेडिट. क्रेडिट पेमेंट तो आया नहीं है, तो अभी कौन सा डिस्काउंट लेना? सिर्फ सीडी लेना. वो सीडी का कंडीशन है. मैंने आपको बताया था ना, सीडी इमीडिएटली भी होता है, बाद में भी होता है. तो इसने लालच रखी है जनवरी तक. जनवरी के अंदर पैसा देगा तो सीडी मिलेगा, वरना सीडी नहीं मिलेगा. समझ में आया? तो यहां पर ग्रॉस प्राइस 10,000 लेस सीडी इज हाउ मच? 1,000. विल आई टेक सीडी? पेमेंट आया अभी? जब आएगा तब देखेंगे. बोस टू सेल्स. बोस टू सेल्स. Is that clear? Mr. Bose to sales account.
वो टर्म्स का मतलब समझा कि नहीं? हेलो, प्लीज बी क्वाइट. Returned goods worth 1,000 gross to Mr. Naveen as they were of substandard quality. अभी gross दिया माइनस टेस्ट. तो माइनस टीडी. किसका टीडी करूं, बोस का कि नवीन का? 10% ना कि 5%? क्यों? नवीन को रिटर्न कर, तो नवीन का टीडी उड़ाओगे, कॉमन सेंस की चीज है. लेस टीडी 5%, कितना होता है? 950. 50 रुपीज, तो 950. एंट्री क्या बने? परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न? So Naveen to Naveen debit the receiver and purchase return क्या है आपका? Income. Credit all incomes and gains. Is this clear? Naveen to purchase return. Naveen to purchase return. Wait. जम रहा है? Paid rupees 100 on account as rent to Mr. Shah on behalf of Rajiv, our creditor. Paid rent to Mr. Shah on behalf of Rajiv, our creditor. तो हमारा रेंट है कि राजीव का? तो एंट्री क्या होगी? बोलो क्या डाउट है? एंट्री बोलो. रेंट टू कैश, शाह टू कैश कि राजीव टू? अभी क्या बोला मैंने? बिहाफ. ऑन बिहाफ दे दिया है, मतलब और कोई इंपॉर्टेंट? हमारा रेंट नहीं है वो भैया, राजीव का है. राजीव टू कैश. हमने ना, देखो हम राजीव को पैसा देने गए. राजीव बोला मैं दुबई में बैठा हूं. मेरा लैंडलॉर्ड उधर बैठा है, उसको पैसा दे दो. मेरा लैंडलॉर्ड उधर बैठा है, उसको पैसा दे दो. तो मैं बोला कि देख मैं तेरा भाड़ा पे कर रहा है, लेकिन अभी मेरे को तेरे को देने का पैसा कुछ नहीं है, सेटल. तो ऑन बिहाफ, याद आया? अब भी किया. ऑन बिहाफ मतलब खत्म, और तू देखने का नहीं. तो राजीव टू कैश. राजीव टू कैश हाउ मच? 100. राजीव टू कैश 100. अभी गम्मत वाला है 8th वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मत करो. रेंट विल नॉट कम बिकॉज रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं है. व्हेन डू यू डेबिट रेंट? व्हेन यू पे योर ओन रेंट, योर बिजनेस का रेंट. दिस इज नॉट योर रेंट. लिसन, व्हाट हैज हैपेंड? सपोज आई हैव टू पे यू 500 rupees. You are my creditor, Tiana. I have to pay you 500 because I have bought goods from you. I came to pay 500 to your house. You were in Dubai. So I called you. You told me that I'm not here. Please pay my landlord. मेरा रेंट बाकी है, उनको देने का 500, आप पे करो. मैंने बोला ठीक है, आई एम पेइंग हिम दैट 500, लेकिन अपना अकाउंट सेट. आई विल नॉट पे यू अगेन. तो रेंट इज नॉट माई बिजनेस का एक्सपेंस, इट्स योर्स. फॉर मी हु इज गेटिंग सेटल्ड? टियाना इज गेटिंग सेटल्ड. गॉट इट? तो मेरे को रेंट से क्या लेना देना, मेरे को शाह से क्या लेना देना? आई एम नॉट डीलिंग विद देम. अंडरस्टूड? हमारा रेंट नहीं है, राजीव भैया का रेंट. तो वी आर सेटिंग राजीव. इज इट क्लियर? 8th one, very very important. Issued a check of 3750 in full settlement of Naveen's account. Check and tell me how much are we supposed to pay to Naveen? 4775. No, minus 2. How much are we supposed to pay to Naveen? 4750 देना है ना? लेकिन वो थोड़ी काउंट होता है. आपने नवीन से खरीदा है 4750, फिर उसको डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दिया 950 का. आपने अमेजोन से खरीदा था 5000 का ड्रेसेस 5, उसमें से एक डिफेक्टिव निकला, आपने रिटर्न कर दिया. तो आप कितना दोगे?
5 की 4 ऑब्वियसली। जो रिटर्न कर दिया क्या उसका पैसा दोगे आप? नहीं। तो यहाँ पर नवीन भैया से टोटल माल कितना खरीदा और उसमें से 950 का क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो नेट कितना दोगे उसको? 3800। 4750 माइनस 950, 3800 देना था। कितना दिया? 84, मतलब 50 इज डिस्काउंट। अंडरस्टूड। इसका एक और तरीका है, आगे भी काम आएगा, सुनो ध्यान से। सुनो 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 सुनो। Whenever you want to find out कि एक क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, जब भी यू वांट टू कैलकुलेट कि एक क्रेडिटर को कितना पैसा देना, जैसे यहाँ पे आपको ढूंढना है कि नवीन को कितना पैसा देना है, तो देयर इज अ स्ट्रेट फॉर्मूला, डू क्रेडिट माइनस डेबिट। डू क्रेडिट माइनस डेबिट, बिकॉज नवीन कौन था? क्रेडिटर था। तो क्या करने का? क्रेडिट माइनस किसका? क्रेडिट माइनस डेबिट? नवीन का। नवीन का क्रेडिट माइनस डेबिट। तो नवीन का क्रेडिट देखो, नवीन का क्रेडिट इज 4750 माइनस डेबिट इज 950। तो 4750 माइनस 950 इज व्हाट? 3800। समझा? सिंपल। और 4-5 ट्रांजैक्शन होते ऊपर नवीन के तो भी आंसर 2 मिनट में आ जाता। क्रेडिट माइनस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट? क्रेडिट द गिवर, डेबिट द। तो जो गिवर है नवीन उतना लायबिलिटी बढ़ा, और जो रिसीवर है उतना लायबिलिटी घटा। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी बढ़ा, डेबिट मतलब लायबिलिटी घटा। तो नेट जो बचा वो देना बाकी। समझा? यही अगर कोई डेटर से कितना पैसा लेना है अगर ढूंढना है, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेटर डेबिट मतलब एसेट बढ़ा, क्रेडिट मतलब एसेट। समझा? क्रेडिटर को कितना देना है कैसे ढूंढो? क्रेडिट माइनस। डेटर से कितना लेना है कैसे ढूंढो? तो अभी 3800 देना है, बट आर वी गिविंग 3800? वी आर गिविंग हाउ मच? 3750। 50 रुपया बैक डेट की डिस्काउंट, बिकॉज यहाँ पे फुल सेटलमेंट। पैसा दिया कि लिया? दिया बाय चेक कैश। एंट्री क्या होगी? चेक दिया ना, तो एंट्री क्या होगी? नवीन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट। हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड। सोच लो, रिसीव्ड है ना, पैसा दिया एट अ डिस्काउंट। बीइंग, नरेशन इसका लिख लो, बीइंग नवीन्स अकाउंट सेटल्ड एट डिस्काउंट। बीइंग नवीन्स अकाउंट settled at discount. Being Naveen's account settled at discount. Understood? Next. Eighth one तो क्या है? Eighth one. Placed an order with Ravi Traders for goods of 2000. What do you mean by placing an order? No. It's a no entry. परचेज माल आया, पैसा गया, ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर तो कैंसिल भी हो सकता है ना, है ना? तो फिर ऑर्डर प्लेसिंग इज नॉट अ, आपने जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस किया 5 मिनट में कैंसिल कर दिया, इज इट अ ट्रांजैक्शन? लेकिन जोमेटो वाले चोर लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस को भी ले लेते हैं। नहीं, वो तो ट्रांजैक्ट पेनल्टी मारते हैं वो अलग, लेकिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा झोल करते हैं। वो लोग बताते हैं कि नहीं, ये ऑर्डर प्लेस भी हमारा सेल हो गया, दे इन्फ्लेट द सेल। मैंने आपको बोला था शायद क्लास में, स्टार्टअप्स वाले ये झोल करते हैं, अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, जोमेटो वाले। रिटर्न्स के वक्त बताया था ना मैंने कि दिवाली धमाका सेल होता है, बम्पर सेल होता है, तभी सेल हो गया 500 करोड़ का, अमेजोन पे सेल हुआ 500 करोड़ का, उसमें से 100 करोड़ का माल रिटर्न आ गया। 15 डे रिटर्न पॉलिसी होता है। तो वो लोग क्या बताते हैं, रिटर्न बता देंगे, नहीं 500 करोड़ का सेल, तो हमारा दिवाली बम्पर धमाका में कितने का सेल हुआ? 500 करोड़। अरे बाद में वापस रिटर्न हो गया उसका
वो इतना इनकम कहाँ से दिखाएंगे? इनकम ही वो लोग 500 दिखा देते हैं पहले स्टार्टिंग में बूस्टअप करने के लिए, फिर पीछे रिटर्न दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें दिखाता है, उसको हिडियस फॉर्म में रखता है। तो कोई इन्वेस्टर रहेगा, सोचने वाला रहेगा तो देखेगा दूसरा। मार्केटिंग के लिए तो वो लोग 500 करोड़ ही बताएंगे, टैक्स 400 पे भरते ऑब्वियसली नेट पे ही भरे, जीएसटी उसी को भरे। लेकिन इन्वेस्टर्स होते हैं ना बेचारे, भोले लोग होते हैं, जिसको पिच करते हैं ना पैसा रेज करने के लिए, वहाँ 500 करोड़ से चलो डालो। इसका बड़ा सब स्टार्टअप ये फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स ऐसा बना के दो बना के। सर बस हो गया। सर बस एक मिनट पहले ये तो लिखो, व्हाट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, एंट्री कब होगा, एग्जीक्यूशन जब पैसा माल आएगा या फिर गुड्स जाएगा। लिखो लिखो, नो एंट्री लिखा, रीजन लिखा, प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। अभी एक लास्ट एंड देन वाइंड अप, लास्ट फिर एक वैरायटी स्टार्ट हो रहा है। One minute. अरे तुमने किया है यार, इतना टाइम में हो जाता। वन लास्ट प्लीज, जज नहीं है तुमको क्या करना है। Goods lost by fire of 5,000. Made a claim with insurance company 4750. They admitted 4,500. Come on, फटाफट। Claim admitted है कि received है? मतलब मिलना तो कौन सा अकाउंट, बैंक की क्लेम, और क्लेम जितना बढ़ेगा लॉस उतना, तो क्या होगा एंट्री, लॉस बाय फायर कितना, 500। वेरी गुड, याद आया 5,000 में से 4,500 का क्लेम है। इंश्योरेंस क्लेम लिखूं कि बैंक लिखूं, कितना, 4,500 टू व्हाट, परचेज या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, राइट। हेलो, अच्छा नरेशन तो सेम ही है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड क्लेम एडमिटेड। हमारा क्लेम का वैल्यू है कि उनका, उनका 4,500। लॉस बढ़ा, क्लेम क्या है, एसेट, डेटर, डेटर बढ़ा और गुड्स घटा। याद आया ये, लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैड दैट। अभी होमवर्क ले लो। अरे भैया होमवर्क तो लेना है, होमवर्क तो लेना है। होमवर्क में Uh, 28 सब सुनो होमवर्क ले लो आज का। अच्छा ये सम के लिए ना आपको छोड़ना है 3 sides you leave for खान वाला सम, खान जो वाला सम कर रहे हैं ना अभी, उसके लिए 3 साइड्स छोड़ देना है। सुन रहे हो, 3 साइड छोड़ोगे ना। अभी आज का होमवर्क ले लो, ट्यूसडे दिखाना है 27 and 28। 27 and 28 2 सम्स। अभी उसमें करेक्शन है, 28 सम में कुछ नहीं है, छोटा छोटा 10 ट्रांजैक्शन का सम है, और नरेशन नहीं चाहिए मेरे को।
नो नरेशंस, ओनली 2 प्रॉब्लम्स, 27 एंड 28। और उसमें सुनो 28 का 23rd दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? पेड कैश 9,300 टू मनीष इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कट दैट 9,300 एंड मेक इट 8,700। 9,300 को कट करके 8,700 कर दो, ठीक है? चलिए दिमाग लगाना, खुद से सॉल्व करना और होमवर्क